want to tell you, in the previous lecture I have told you the question in which we have to determine interval. Okay, and today I will discuss about this question. The question, what is the question? Find the interval in which the function f of x is sin x plus cos x. Okay, what is the value of x? यानी x value from 0 to 2 pi. 0 to 2 pi is increasing or decreasing? कहा जा रहा है increasing है or decreasing? Then in this case we should determine the interval. Okay. Okay, let us start. F of x is equal to sin x plus cos x. Okay, now we shall differentiate it. F dash of x is equal to cos x minus sin x. Okay, we shall convert it in the form of the sin x plus alpha. Okay, now here on dividing, on multiplying by the root 2 and dividing by root 2, here becomes 1 upon root 2 cos x minus 1 upon root 2 sin of x. Okay guys, okay, यानी हम इस तरह से पहले कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? यानी sin x plus theta cos x plus theta, we have studied class 11. Okay, now we shall convert it. यानी sin x plus theta या sin x minus theta, यानी किस तरह का फॉर्म होगा? sin x minus theta का फॉर्म हो जाएगा. Okay, now 1 upon यानी root 2, 1 upon 2 over 1 upon root 2 is equal to sin pi by 4 cos x minus cos pi by 4 sin x. यानी what is the value of the cos pi by 4? 1 upon root 2. Okay, now what is this? यानी sin a cos b minus cos a sin b. तो हमको यहाँ पे pi by 4 minus 6 आ जाएगा. हम चाहेंगे कि वेरिएबल पहले हो, है ना? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस, यदि sin x cos pi by 4 को पहले लिखेंगे, यानी माइनस को कॉमन करेंगे, then here becomes 1 upon यानी root 2, यानी it becomes sin x cos pi by 4 minus cos x sin pi by 4. Okay, then from there minus root 2 sin a cos b minus cos a sin b, it becomes sin a minus b. फार्मूला क्या हो जाएगा? a minus b पे, यानी sin x minus pi by 4. Okay guys, now यानी this is the f dash of x. After that we shall see here the value of x is x vary from 0 to 2 pi. Then we shall check, यानी what will be the range of the x minus pi by 4. यानी यह x minus pi by 4 की वैल्यू कहां से कहां तक है, यानी कितना रेंज है इसका, कहां से कहां तक इसकी वैल्यू होगी. x minus pi by 4 यहां पे एंगल है वही है. मैंने कैलकुलेट में मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था. कभी भी आप एंगल को देखो, इसमें एंगल को जो x की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे जो भी दिया जाए उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. इसको देखेंगे कहां से कहां तक इसकी वैल्यू लाई कर रही है, कहां से कहां तक वेरी कर रही है, इसको देखना जरूरी है. नाउ since x vary from 0 to 2 pi, here the x minus pi by 4, यानी x minus pi by 4, x यानी pi by 4 से क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे माइनस कर देंगे तीनों साइड में, यानी it becomes minus pi by 4, it is less than equal to 2 pi minus pi by 4. And this means subtracting pi by 4 from each side, then here becomes x minus pi by 4, here becomes minus pi by 4, here becomes 2 pi minus pi by 4.
Then what is this? X minus 5/4 is less than equal to 4 to the 8, यानी 7 pi by 4, यानी here becomes minus pi by 4, यानी आप देखो बेटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट कर रहा है, यानी इसका रेंज क्या है माइनस पाई बाई 4 से लेकर 7 पाई बाई 4। इसके बीच में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये कहा गया है टू फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो हम तो जान गए ना कहां से कहां तक जाना है, किसके बीच में क्या होगा। Now after that अब आपको यहाँ समझने की जरूरत है, बार बार मैं कहना चाहूंगा यहाँ समझने की जरूरत है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो आप समझ जाओगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कर लोगे। ओके, ये आपका ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या है, साइन फंक्शन है। साइन का ग्राफ आप अंडरस्टैंडिंग करिए, साइन का ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना जरूरी है, और साफ भी करते तो आप ड्रा कर दो। क्यों? क्योंकि आप जब तक समझो नहीं कर नहीं पाओगे। ओके, एग्जामिनेशन हो या कुछ भी हो, आपको यहाँ पे आप ड्रा कर दो, इससे आपको पता चले हाँ मैंने ऐसे किया है, और ऐसा आपका इजी, आपका सॉल्व करने का तरीका इजी हो जाता है। मैंने देखो यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रा करेंगे कैसे होगा, कुछ ऐसे आ जाता है। ओके, here becomes 0, here the pi 2 pi, okay guys, and also in the negative direction of x-axis it becomes like this, यानी pi by 4, यानी कहीं यहाँ पे आएगा minus pi by 4, minus pi by 4 and 0। यानी देखो ग्राफ क्या है, यानी यहाँ पे नीचे से आया, यानी डिक्रीजिंग में है, यानी x एक्सिस से नीचे है। तो ये डिक्रीजिंग के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हम माइनस पाई बाई 4 से लेकर 0 तक जाएंगे, ये डिक्रीजिंग के लिए, और यहाँ से पाई से लेकर 2 पाई तक डिक्रीजिंग के लिए हम इंटरवल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आ गई वही आपका रियल हो जाएगा। ओके, नाउ since first for increasing f dash of x is greater than 0। okay, what is the value of the f dash of x, यानी -2 √2 sin x minus pi by 4 is greater than 0, यानी you are looking here, यानी sin x minus pi by 4 is less than 0। अब बेटा आपको ग्राफ से क्या देखना होता है, जरा देखो ग्राफ में क्या देखना होता है, इसी के अनुसार हम इसमें देखेंगे यहाँ पे, यानी sin x minus pi by 4 की वैल्यू, यानी ये क्या फंक्शन की वैल्यू है, यानी f dash of x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 मींस नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कहाँ आ रही है, ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस से नीचे आएगा वही क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसलिए यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक पुट करेंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू पाई से लेकर यानी पाई और 2 पाई के बीच में पुट करेंगे तो आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल x माइनस पाई बाई 4 x की बल्कि यहाँ टोटल की वैल्यू, यानी x की वैल्यू तो यहाँ पुट करेंगे, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से पाई से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। और हम यहाँ पे आपको बता रहे कि यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 हो गया, यहाँ पे पाई 0, यहाँ पे पाई, और 7 पाई बाई 4 इज वेयर, यानी देखो हमारे पास यानी आपका 3 पाई बाई 2 कहीं यहाँ पे आएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कुछ यहाँ पे जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2 हमारे पास क्या है पाई बाई 4 प्लस कर देंगे। मुझे लग रहा है आपका जो नहीं यहाँ पे 7 पाई बाई 4, यानी आप 2 पाई से कम होगा बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी 7 पाई बाई 4 इधर आएगा, यानी इससे कम होगा, यानी 2 पाई से आपका 7 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4 क्या है आपका कम है,
ओके, तो इसके बीच में लाई करेगा। ओके, तो हम लोग बात क्या करते हैं 7/1 कहीं मान लेते हैं कहीं आएगा, ठीक है, कहीं इधर आएगा। अब आप देख सकते हो बेटा, आप बस ऐसे रखे रहना, घबराना नहीं। हम देखेंगे therefore x minus pi by 4 इसके बीच में, यानी यहाँ पे पाई हो गया, सॉरी 0, यहाँ पे लेस देन 0 और ग्रेटर देन किससे है -pi by 4 r, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे pi 7/4, यानी हमारे पास क्या है ग्राफ सीधे निगेटिव आ रहा है ना, तो हम निगेटिव यहाँ के लिए यानी x minus pi by 4 लेस देन कितना हो गया बेटा 7/4 और यहाँ पे पाई। ओके, देन फ्रॉम हियर x, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा, यानी x minus pi by 4, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी -pi by 4 तो क्या करेंगे, यदि इधर भी इसको शिफ्ट कर दें, इसको इधर भी शिफ्ट कर दें, यानी इसको सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि +pi by 4, यानी दिस इज एडिंग pi by 4 इन ईच साइड, या आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो आपको समझ में आना चाहिए, यानी pi -pi by 4 इधर भी करेंगे इधर भी कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी x, यानी ये प्लस हो गया, इधर चल के -pi by 4 इधर जाएगा प्लस, तो 0 हो गया। ओके, ये अब आपके पास 0 था, ये प्लस हो गया, यानी r हियर इज द x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे 7/pi by 4 plus pi by 4। ओके, नाउ pi plus pi by 4, pi plus pi by 4 here, then what is this, यानी x की वैल्यू यहाँ कहाँ लाई कर रही है 0 to pi by 4, यानी सेमी ओपन इंटरवल r x belonging to, यानी पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यानी pi plus pi by 4 यानी कितना हो जाएगा 5pi by 4 लेस देन x and x is less than 7pi by 4 plus pi by 4 equals 2pi। ओके, यानी here r x belonging to 5pi by 4 to 2pi, यहाँ पे ओपन होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके गाइस, here becomes x belonging to 0 to pi by 4 r x belonging to semi open interval 5pi by 4 comma 2pi, यहाँ पे ओपन इंटरवल है यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ पे क्या होगा सेमी ओपन इंटरवल, यानी फंक्शन इज increasing in the interval कौन सा लेंगे हमारे पास 0 to pi by 4 union 5pi by 4 to pi, यानी हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल 5pi by 4 comma 2pi यहाँ पे हो गया। Now after it, for the decreasing function, what we shall do for the decreasing function? Now देखो इसमें टाइम लग रहा है बेटा, क्योंकि मुझे आपको बताने हैं तो टाइम तो लगने ही लगने हैं, बस मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में। ओके, तो आप कॉन्सेप्ट भी जानोगे, यदि मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता था सॉल्व करके मैं भाग जाता, लेकिन नहीं, आपको मेरा मुद्दा क्या है, मेन मेरा एम है आपको समझाना, आपको समझ में आना चाहिए।
Okay guys, for decreasing f dash of x is less than 0, यानी minus root 2 sin x minus pi by 4 is less than 0. After that, sin x minus pi by x minus pi by 4 is greater than 0. Far greater than 0, x minus pi by, this implies that x minus pi by 4 is, this is the positive, and 0 to pi. Okay, no 0 नहीं, इक्वल नहीं होगा यहाँ पे. Okay, then here x 5 plus pi by 4 here becomes pi by 4, यानी x belonging to open interval pi by 4, यानी here becomes 5 pi by 4, यानी function is decreasing, यानी f is decreasing in interval pi by 4 to 5 pi by 4. Okay guys.